بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے نظم اسلامی مساوات کا 5واں بند پڑھنا ہے۔ پہلے میں نظم کا عنوان لکھ دیتا ہوں۔ نظم کا عنوان اسلامی مساوات۔ اور اسی نظم کو مصدع سے خالی بھی کہا جاتا ہے، اور حقیقی نام اسی نظم کا ہے مد و جزر اسلام۔ یعنی یہ نظم جب مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی تو اسے نام دیا مد و جزر اسلام کا، اور اس کی ہیئت، شکل، صورت، ترتیب مسدس درج کی تھی، تو یہ نظم مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور اس میں سے کچھ بند ہمارے سلیبس میں شامل کیے گئے ہیں، تو ان بندوں کو عنوان دیا گیا ہے اسلامی مساوات کا۔ یعنی ہم نظم کا عنوان پیپر میں تحریر کریں گے اسلامی مساوات۔ شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ خواجہ الطاف حسین حالی بھی لکھا جا سکتا ہے، مولانا الطاف حسین حالی بھی لکھا جا سکتا ہے۔ مولانا الطاف حسین اصل نام ان کا، اور حالی تخلص۔ اس نظم کا 5واں بند کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، کمر بستہ ہیں لوگ، کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گلو لالا رہتے ہیں، گلو لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی۔ نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کی افتہ ہے ڈھیروں، دواؤں میں مشک ان کی افتہ ہے ڈھیروں۔ وہ پوشاک میں
وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں، خیرون۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، نظم اسلامی مساوات، شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ تو مولانا الطاف حسین حالی اس بند میں کہتے ہیں کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گلو لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دماؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ پہلے پہل اس بند کے مشکل الفاظ اور تراکیب کی وضاحت۔ مشکل الفاظ اور تراکیب کی ذات پہلا لفظ ہے کمر بستہ، تیار رہنا، کمر بستہ رہنا، تیار رہنا، آمادہ ہونا۔ گلو لالا گلاب کا پھول اور لالا کا پھول۔ استعارہ ہے حسین و جمیل لوگوں کے لیے گل و لالا۔ صحبت ساتھ، نفاست نفیس ہونا، صاف رہنا، نزاکت نازک مزاج، مشک ایک خوشبو کا نام، ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ مشکل الفاظ ہیں اس بند سے متعلق کمر بستہ رہنا، تیار رہنا، آمادہ ہونا، گلو لالا گلاب کا پھول اور لالے کا پھول، استعارتاً حسین و جمیل لوگ، صحبت ساتھ، نفاست نفیس ہونا، صاف رہنا، نزاکت نازک مزاج، مشک ایک خوشبو کا نام۔ تو مولانا الطاف حسین حالی نے نظم کے اس 5ویں بند میں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے، جو قومیں
तबाही और बर्बादी की जानिब जा रही होती हैं, उन कौमों के उमरा का क्या हाल होता है, उस कौम के दौलतमंद लोग किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, उस कौम के अमीर लोगों का वतीरा क्या होता है, उनकी आदत क्या होती है। वो तसाहुल पसंद हो चुके होते हैं, ऐशो इशरत उनकी घुट्टी में पड़ी हुई होती है, और वो जायज व नाजायज हर तरीके पर अपने लिए आसाइश चाहते हैं, अपने लिए आराम चाहते हैं, और दौलत का हसूल, दौलत परस्ती उन्हें खुदा परस्ती से भी गाफिल कर देती है। इसलिए मौलाना अल्ताफ सनहाली कहते हैं, कमर बस्ता है लोग खिदमत में उनकी। ये अमीर लोग अपनी ऐशो इशरत के लिए, अपने आराम और सुकून के लिए लोगों को अपनी खिदमत पर मजबूर करते हैं, यानी लोग उनकी खिदमत करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, गुलो लाला रहते हैं सोबत में उनकी। हसीन और जमील लोगों को वो अपने यहाँ नौकर रखते हैं, उन्हीं की महफिलों में बैठना, उन्हीं की मजालिस में उठना बैठना उनकी आदत होती है। कबाब, शराब, शबाब ये इनकी आदत बन जाती है। इनकी शादी ब्याह की रसूमात हूँ, जब तक गाने बजाने ना हूँ, इस तरह की महफिलें ना हूँ, कबाब, शबाब, शराब ये चीजें ना हूँ, तो इनको अपनी ये महफिलें अच्छी भी नहीं लगती, इनका दिल भी नहीं लगता। रक्स व सरूद की महफिलों में इनका दिल लगता है, और वो गरीब लोग अपने पेट का जहन्नम भरने के लिए इन्हीं के आगे रक्सा होते हैं, इन्हीं की खिदमत कर रहे होते हैं। इसलिए मौलाना अल्ताफ सनहाली ने कहा कि कौम जब ज़िवाल पजीर होती है, जब तनज़ली की जानिब जाती है, जब पस्ती की जानिब जाती है, तब अमीरों की महफिल में ये देखने को मिलता है कि हसीन व जमील लोग उनके नौकर बनकर, उनके खादिम बनकर उनको जाम पे जाम पिलाए जाते हैं। तो इसलिए कहा कि कमर बस्ता है लोग खिदमत में उनकी, गुलो लाला रहते हैं सोहबत में उनकी, नफासत भरी है तबीयत में उनकी। ये बड़े नफीस मिजाज के लोग होते हैं, सफाई पसंद और नजाकत सो दाखिल है आदत में उनकी, बड़े नाजुक मिजाज, यानी अपना कुछ छोटा सा काम भी अपने हाथ से करना ये आर समझते हैं और उसके लिए शर्म महसूस करते हैं। दवाओं में मुश्क उनकी उठता है ढेरों, अगर ये कभी बीमार पड़ जाएं तो अपने लिए मखसूस अद्वियात तैयार करवाते हैं और उन्हीं के अंदर मुश्क और कस्तूरी ये शामिल करवाते हैं कि दवा की जो कड़वाहट है वो इनकी अद्वियात में शामिल ना हो, उसमें से मुश्क और कस्तूरी की खुशबू आ रही हो, या फिर वो दवाई अपने अंदर मिठास और शीरीनी रखती हो। वो पोशाक में इत्र मलते हैं सैरों, यानी वो जब भी कोई लिबास पहनेंगे जो सिर्फ दिखावे के लिए पहनते हैं, जिनमें सतर पोशी के लिए वो लिबास नहीं पहना जा रहा होता, सिर्फ लोगों को मरऊब करने के लिए, उन पर अपना रोब झाड़ने के लिए कीमती से कीमती लिबास पहना जा रहा होता है, और उस पर इतना इत्र लगा हुआ होगा कि वजन के हिसाब से मौलाना अल्ताफ सनहाली ने कहा कि सरू लगा हुआ होगा। वैसे मुराद असल में ये लेना चाहते हैं कि वो ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करते हैं। अब ये ज़िवाल पजीर कौम के उमरा का हाल है, और वहां जो ज़िवाल पजीर कौम है उसके गरीबों का ये हाल होता है, उन्हें खाने पीने की अशिया मुयस्सर नहीं है, आराम और सुकून पल भर को मुयस्सर नहीं है, पहनने के लिए, सतर पोशी के लिए कपड़े तक मुयस्सर नहीं है, जूते मुयस्सर नहीं हैं। वो टूटा फूटा जूता मिलेगा जो रास्ते में कांटों और पत्थरों से बचाने की सलाहियत या खूबी भी अपने अंदर नहीं रखता। इसलिए मौलाना अल्ताफ सनहाली ने कहा कि कमर बस्ता है लोग खिदमत में उनकी, गुलो लाला रहते हैं सोहबत में उनकी, नफासत भरी है तबीयत में उनकी, नजाकत सो दाखिल है आदत में उनकी, दवाओं में मुश्क उनकी उठता है ढेरों, वो पोशाक में इत्र मलते हैं सैरों। अमीर लोगों के यहाँ नौकर, उनके खादिम, उनके मुलाजिम
हर वक्त उनका काम करने के लिए तैयार रहते हैं और हसीन व जमील लोग उनकी महफिल को रंगीन बनाए हुए होते हैं और इनके बगैर उमरा रह भी नहीं सकते। उनकी कोई तकरीब हो, कोई महफिल हो, मजलिस हो, उसमें रक्स और नगमात अलापे जाते हैं। इसी अंदाज में वो कहते हैं कि ये तो नफीस और नाजुक मिजाज लोग हैं, ये अपने आप को बनी नौ इंसान से मुख्तलिफ एक नौ समझते हैं और ये अद्वियात जब तैयार करवाते हैं तो उनमें भी मुश्क और कस्तूरी शामिल होती है। ये बड़े ऐश और आराम से जिंदगी बसर करते हैं। जी तलबा, आज के लेक्चर को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह।